This class we are going to discuss gravitational field strength first. So what is gravitational field strength? How it is defined? Gravitational field strength is defined as the it's basically is the region in space where you can feel the presence of any massive object. तो अगर तुम यहाँ पर डायग्राम में देखो या फिगर में देखो तो यहाँ पे एक बहुत मैसिव सा ऑब्जेक्ट है कैपिटल एम और उसके आसपास के रीजन को मैंने शेड कर दिया है। तो ये जो शेडेड रीजन है जहां पर जैसे ही मैं कोई ऑब्जेक्ट को पास में लाता हूं, कोई स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट, कैन यू सी दिस स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट एम, स्मॉल एम? सो Yes, sir. this point object, as it comes near to this massive object, it start getting or experiencing the gravitational pull of the massive object capital M. So वो region in the space, that region in the space where a point object start experiencing the gravitational pull of any massive capital M, any massive object capital M, that region of the space is called as gravitational field. And the intensity of this gravitational field is called as gravitational field strength and is mathematically defined as the gravitational force experienced by our point mass. किसका gravitational force? Gravitational force experienced by this point mass divided by the mass itself. So it is defined as gravitational force experience. What does FG stands for? This stands for gravitational force experienced. किसने एक्सपीरियंस किया इस फोर्स को? एक्सपीरियंस बाय पॉइंट मास Small m. small m and divided by the mass itself, divided by the point mass of the point mass. Okay, so divided by the mass of that point mass that you are bringing. Okay, so that is how you define this gravitational field. Remember student, it's going to be a vector quantity. So this will be a vector quantity. So when I say vector quantity, whenever you are going to mention it, don't forget to mention its direction. So gravitational field strength is going to be a vector quantity. So whenever you are going to mention, don't forget to mention its direction. मैं बार बार इन सारी चीजों को नहीं emphasize करूंगा कि वेक्टर क्वांटिटीज डायरेक्शन के बिना लिखे जाने पर गलत हो जाएगी। अब तुम लोगों को मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला था? किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल का फॉर्मूला होता है G कैपिटल M स्मॉल m divided by the distance between the two masses. So G capital M small m divided by the distance between them, and then let's consider that distance between the centers of these two masses to be r, small r. So the gravitational force will be G capital M small m upon r square, and this entire thing, this is the gravitational pull divided by the small m. So once you divide by the small m, what is small m? That's the mass of the point mass that you are placing, and this small m cancels out with the small m on the top. So gravitational field strength comes out to be G capital M upon r square. Now you need to understand there are two very important aspects associated with the gravitational field strength, students. पहली बात जो समझनी जरूरी है वो कि gravitational field strength is always due to the source mass. It is the property of the source mass. ठीक है, it is the property of the source mass. इसमें capital M है. So it's basically the property of the source mass. Source mass यानी जो capital M जो massive object रखा है, जो mass तुम वहां place कर रहे हो उसकी ये property नहीं होती है. पॉइंट मास की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उस ऑब्जेक्ट की, उस मैसिव ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है. दूसरा, ये स्पेस में सिचुएटेड एक पॉइंट है. इट इज अ पॉइंट. ठीक है, सो किसी भी पॉइंट पे, मान लो मैं अगर इस पॉइंट पे चला जाता हूं, ये पॉइंट मैं कह देता हूं एक्स, जो कि इस ग्रेविटेशनल जो कि इस मैसिव मास m से कुछ डिस्टेंस x पे सिचुएटेड है, तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो इस पॉइंट पर अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है कैपिटल Gx, दैट विल बी G कैपिटल M, दैट इज द
मास ऑफ दिस मैसिव ऑब्जेक्ट अपॉन जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसका उस मैसिव ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस क्या है, अगर उसका डिस्टेंस x है तो अपॉन x स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी मैसिव ऑब्जेक्ट की है और distance from that massive object, distance from the center of that very massive object. So that is how you define the gravitational field strength. Another important point, don't forget that it's going to be a vector quantity. तो जब कभी भी आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन या तो रेडियली इनवर्ड्स होगा या रेडियली आउटवर्ड होगा, इसलिए मैंने यहां पर देखिए आर कैप लिख दिया है। तो इस आर कैप को लिखने का पर्पस क्या है, इस बात को एम्फसाइज करना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इफ यू आर लुकिंग फॉर द एसआई यूनिट, तो ध्यान से देखो क्या डेफिनेशन थी, कैसे डिफाइन किया था ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को, इसको डिफाइन किया गया था फोर्स एक्सपीरियंस excuse me, force experienced per unit mass. So what is the unit of force experience? That is Newton. Or per unit the point mass, per unit mass of point mass, and point mass की unit क्या हो जाएगी, वो unit हो जाएगी kg, तो Newton per kg. So that is how you are going to get its SI unit, that is Newton per kg. I hope you all have understood what do we mean by gravitational field strength. Any doubt to anyone? Gravitational field strength, students, will never be radially outward. I just now spoke that it is radially inward or outward. That was a slip of a tongue. The gravitational field strength will always be directed radially inward because the gravitational pull is always directed radially in. It's always attractive in nature. तो किसी भी point पे जब तुम वहां पे gravitational field निकालोगे, that gravitational field will always be directed radially inwards. Is that clear to everyone? I hope so. ये अलग अलग पॉइंट्स पे मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन को मार्क भी करके दिखा दिया. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स. ओके, नाउ let's move on to the next part, and that is the definition for gravitational potential and potential energy. Okay, how do we define gravitational potential? Now the gravitational potential due to any source mass at any point will be defined as the work obtained. Now remember students, work obtained. आप किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के आसपास कोई अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट छोड़ दोगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट खुद ब खुद खिंचा चला आएगा, तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें वर्क मिलेगा. इसलिए कैसे डिफाइन किया जा रहा है, वर्क ऑब्टेन्ड. तो वर्क ऑब्टेन्ड पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग द मास कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट इन द फील्ड. और इसको कैसे लेके आना है, इसको लेके आना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इस वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, विथ इनफाइनाइटिसमली स्लो कांस्टेंट स्पीड, विथ इनफाइनाइटिसमली स्मॉल कांस्टेंट. क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का हमारा वर्क डन लॉस्ट हो इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी लॉस ना हो, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए डेफिनेशन कहती है कि आप किसी भी पॉइंट मास को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट इन द ग्रेविटेशन फील्ड में ले आइए, तो उसमें जो भी वर्क ऑब्टेन होगा, तो वर्क ऑब्टेन पर यूनिट मास इज गोइंग टू डिफाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. सो वर्क ऑब्टेन्ड पर यूनिट मास. अब बेटा वर्क ऑब्टेन जब भी होगा तो वर्क ऑब्टेन फील्ड की वजह से होगा. जब कभी भी वर्क डन करते हो तो वर्क डन हमेशा एजेंट करता है. एजेंट जब भी काम करेगा तो उसको हम फिजिक्स में कहते हैं वर्क डन. और जब कोई फील्ड कोई काम कर रही है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड किसी चीज को खींच रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक, तो ये वर्क तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, एजेंट नहीं करेगा, ये वर्क फील्ड ने किया है, तो इसलिए हमेशा ये वर्क ऑब्टेन्ड हो जाएगा. तो वर्क ऑब्टेन्ड पर यूनिट मास इज गोइंग टू डिफाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट? तो अब वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल. मास की यूनिट क्या होती है? केजी. तो इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी जूल पर केजी. और ये ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चूंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वर्क डन चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए तुम्हारा
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा. Is that clear? Somebody was asking something. Let's move ahead now and let's see the definition of gravitational potential energy. How do we define gravitational potential energy? Potential energy is always defined as the amount of work obtained. So whatsoever the work you are going to obtain, when this work is obtained in bringing a point mass, फिर से उसी point mass को कैसे लेके आना है, इनफाइनेटली स्लो कांस्टेंट स्पीड से लाना है. वही कॉन्सेप्ट कि सो दैट नो एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इसलिए हम उसको कैसे लेके आ रहे हैं, इनफाइनेटिसमली, बहुत ही धीमे कांस्टेंट स्पीड से. कहां से लाना है, फ्रॉम इंफिनिटी. कहां तक लाना, टू सम पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड of any source massive mass, and that amount of work that you are now going to obtain will define will give me the gravitational potential energy between these two massive objects. So potential energy is going to be equivalent to the work obtained in bringing the mass from infinity to some point in the electric field. ये definition अगर तुम्हें याद हो आ रही है वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम से. तुमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में कि जो कुछ भी वर्क डन होता है या वर्क ऑब्टेन होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट होता है लॉस और गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के. सो दैट्स फ्रॉम देयर वी हैव डिफाइंड दिस definition of gravitational potential energy. And remember, it is once again going to be a scalar quantity. Why it will be a scalar quantity? Because work done is a scalar quantity. And what will be the SI unit of work done? SI unit of gravitational potential energy, it will be again equal to the unit of work done, and that SI unit of work done was joule. So do the SI unit of gravitational potential energy is also joule. So please take care about these two definitions. These two definitions are very, very important. Rather, all the three definitions starting from gravitational field, gravitational potential and gravitational potential energy. अब इन दोनों को डेफिनेशंस को, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को अगर तुम देखोगे तो यू वुड रियलाइज दैट इन बोथ द डेफिनेशन you need to find the work obtained. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है बच्चों, ये है वर्क ऑब्टेन्ड पर यूनिट मास, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या, सिंपली वर्क ऑब्टेन्ड. तो दोनों ही डेफिनेशन में तुम्हें जरूरत किसकी है, तुम्हें जरूरत है कि तुम्हें वर्क ऑब्टेन्ड पता हो. और वो वर्क ऑब्टेन्ड कहां से कहां तक की जरूरत पड़ने वाली, वो वर्क ऑब्टेन्ड की जरूरत पड़ने वाली है फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. सो in the next slide we are going to learn how to obtain the expression for work obtained in bringing a point mass from infinity to some point, and then we will substitute that in these two definitions to get the expression for gravitational potential and potential energy. Is this clear to all of you? On the screen you can see a massive object M placed somewhere in space, and what we need to do, we need to bring some point mass small m. Can you see this point mass small m? From where we are bringing this mass, from infinity, we are not rather bringing, the mass is getting attracted, getting pulled by this massive object capital M, and then this small m starts moving towards this massive mass. It begins to move towards this massive mass, it gets attracted towards this massive mass due to its gravitational field, and let's say it reaches to some point P which happens to be situated at a distance r. So when this mass is being brought up, is being attracted towards this massive mass m, and it reaches to some point P, whatsoever the work we are going to obtain, that work obtained will define gravitational potential as well as gravitational potential energy. Now there is only one limitation that is to be understood, and that is to be endorsed
is that we are going to bring this mass with infinitesimally small constant speed, infinitesimally small constant speed. तो ये मास जब आ रहा है इस मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये कैसे आ रहा है, उसकी कंडीशन क्या इंपोज्ड है? कंडीशन इंपोज्ड है कि वो स्मॉल कांस्टेंट स्पीड से उस मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. इस कंडीशन के साथ वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क ऑब्टेन. नाउ let's begin our discussion by assuming that presently the mass is located at some distance x from the center, at some distance x from the center of this massive object. कहां से चल चुका है? इंफिनिटी से चला. अभी प्रेजेंटली हमारा डिस्कशन जहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, उस डिस्कशन में मास इस समय कहां लोकेटेड है? इस समय जो मास लोकेटेड है वो कोई डिस्टेंस x पे लोकेटेड है, और इस समय जो मैसिव ऑब्जेक्ट कैपिटल M है और जो पॉइंट मास स्मॉल m है, ये हमारा सोर्स मास कहलाएगा मैसिव ऑब्जेक्ट. तो ध्यान रखिए, जब भी मैं मैसिव ऑब्जेक्ट कह रहा हूं तो मैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वो आपका सोर्स मास. तो सोर्स मास और पॉइंट मास के बीच की जो दूरी है सेंटर की, वो स्मॉल x है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? द सेटअप इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर. नाउ इस पोजीशन x के डिस्टेंस पे कितना फोर्स हमारा ये मैसिव ऑब्जेक्ट, मैसिव मास पॉइंट मास के ऊपर लगा रहा है, हम लोग जरा उस फोर्स को फाइंड करते हैं. तो जो फोर्स अप्लाइड होगा या फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा हमारा स्मॉल मास ड्यू टू द मैसिव मास is going to be equal to capital G small capital G capital M small m into the distance of separation. और वो distance of separation बच्चों कितना है? वो है x का. तो F is equals to G capital M small m upon x स्क्वायर. और ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का, रेडियली इनवर्ड डायरेक्टेड है, तो माइनस आर कैप, सो एज टू इंडिकेट दैट इट इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स. और ये फील्ड, ये जो फोर्स है ये इस मैसिव मास की फील्ड ने लगाया हो, इसलिए मैं इसको कहूंगा फोर्स अप्लाइड बाय द फील्ड, और इसको मैं स्मॉल f के साथ सफिक्स लगा के लिख रहा हूं. तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मैसिव मास m ड्यू टू द gravitational field of capital M has been mentioned on the screen. Is that clear to everyone? Is this clear to everyone? Yes sir. Under the action of this force, that is G capital M small m upon x square, under the action of this force, our mass small m gets displaced by a small quantity dx. तो जब वो स्मॉल m अब इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेस हो जा रहा है किधर की तरफ? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मैं उस वर्क डन को निकालता हूं. तो तुम लोग को वर्क डन का फॉर्मूला पता है? वर्क डन का क्या फॉर्मूला था? वर्क डन का फॉर्मूला होता था इंटीग्रल f डॉट dx. यही तो था. यस सर. तो ये जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन कौन कर रहा है? फील्ड कर रहा है. तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां पे लिख दिया वर्क डन बाय द फील्ड. और कहां से? अब मैं टोटल वर्क डन को अगर फाइंड कर रहा हूं, तो टोटल वर्क डन कहां से मैं मास को मूव करता हुए देख रहा था? इंफिनिटी से. और कहां तक इस स्मॉल m को चल के आना है? किसी पॉइंट P पर. और P से इसके सेंटर की दूरी कितनी थी? R. तो लिमिट्स मिल गई मुझे इंफिनिटी से R. और जो भी फोर्स अप्लाइड है, कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? ये भाई फील्ड वाला फोर्स हम देख रहे हैं, तो फील्ड का फोर्स इनटू dx. तो ये वर्क डन आ जाएगा. ये जो वर्क डन फील्ड ने किया, यही वर्क डन मुझे वर्क ऑब्टेन होगा. तो ये हमारे लिए वर्क ऑब्टेन बन जाएगा. तो कितना वर्क ऑब्टेन हो गया? सब्स्टिट्यूट कर दो जो फोर्स का है एक्सप्रेशन. फोर्स का एक्सप्रेशन कितना? G कैपिटल M अपॉन x स्क्वायर इनटू dx. लिमिट्स इंफिनिटी से. जो चीजें कांस्टेंट है बच्चों, उन चीजों को आप इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर दीजिए. तो जब आपने उनको इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर दिया, यानी G कैपिटल M स्मॉल m को बाहर कर दिया, तो इंटीग्रेशन के अंदर रह गया
1 by x square dx. 1 by x square can be rewritten as x to the power of -2. तो x to the power of -2 into dx, कहां से, इंफिनिटी से r तक। अब इसको इंटीग्रेट करना है और सॉल्व करना है। तो बच्चों तुम्हें x to the power n dx का इंटीग्रेशन पढ़ा था या मैथ्स में पढ़ाया गया होगा? नहीं तो मैंने Yes, sir. मैथमेटिक्स में जब मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ा रहा था तो मैंने भी पढ़ाया था। जो लोग उस समय नहीं प्रेजेंट थे तो वो पुराना वीडियो जाकर उसको देखें मैथमेटिकल एनालिसिस का। तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n+1 अपॉन n+1। यहां पर क्या दे रखा है, यहां पे किसको इंटीग्रेट करने को कह रहा हूं मैं, x टू द पावर ऑफ -2 dx को। x टू द पावर ऑफ -2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2+1 अपॉन -2+1। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे x टू द पावर -2+1 को, तो ये हो जाए x टू द पावर -1 अपॉन -1 और सिंपली -1 अपॉन x। तो x टू द पावर -2 dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -1 अपॉन x आ जाएगा। ये मैंने अलग से सॉल्व कर दिया, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो वर्क डन बाय द फील्ड विल बी, ये माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m, और x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना था, 1/x। तो ये 1/x और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इंफिनिटी से r। अब जब मैं ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करूंगा बच्चों, तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता था, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। तो मैं अपर लिमिट पहले अप्लाई करता हूं, तो -g कैपिटल M स्मॉल m तो बाहर है, अपर लिमिट में अप्लाई करता हूं x की जगह। तो x की जगह जब अपर लिमिट को रखा तो ये हो गया 1 अपॉन r। और जब मैंने लिमिट लोअर लिमिट लगाई -1 अपॉन द लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। और जब इसको सिंप्लीफाई किया फर्दर, तो वर्क ऑब्टेन is going to be equal to -g capital M small m into r। ये बच्चों r है, x नहीं है। so this is the work obtained। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब ये जो वर्क ऑब्टेन है कहां से कहां तक है, इंफिनिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को r तक, किसी भी पॉइंट मास को r तक लाने के लिए है। कैसे लाया गया इस डेफिनेशन के अंदर, ये हमने एज्यूम कर लिया कि आप इस ऑब्जेक्ट को, इस पॉइंट मास को स्लो कांस्टेंट स्पीड से लेके आ रहे हैं। कितना स्लो, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्लो कांस्टेंट स्पीड से लेके आ रहे हैं। ये हमारी नीड थी क्या, डेफिनेशन के लिए। किसके डेफिनेशन के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन के लिए बच्चों। अब वापस चलते हैं, देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू द वर्क ऑब्टेन्ड। यही तो है। कहां से, किसका वर्क ऑब्टेन, वर्क ऑब्टेन इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट r इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब कितना तुमने वर्क ऑब्टेन किया है, तुमने वर्क ऑब्टेन किया -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। तो पोटेंशियल एनर्जी बन गया, किन्हीं भी दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बन गया, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, या -g m1 m2 अपॉन r। What is r? R happens to be the distance of separation between the two masses. Is that clear to everyone? Definition of gravitational potential energy and the expression thereafter. Yes, sir. Let's go and check out what was the definition of gravitational potential. So if you look for the definition of gravitational potential, you will find that the definition says it is the work obtained per unit mass you are bringing। तो भैया कितना वर्क ऑब्टेन किया था हमने, वर्क ऑब्टेन जो हुआ था वो हुआ था -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। और किस मास को, पर यूनिट मास ब्रॉट, और कितने मास को मैं लेके आ रहा था, स्मॉल m के मास को लेके आ रहा था। तो स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आया वो आ गया -g कैपिटल M अपॉन r। तो बच्चों ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन है फॉर एनी स्फेरिकल हेवी मास। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? So the velocity needed in order to escape from the surface of the earth
or from the Earth's gravitational field, and just to reach infinity is often referred as escape velocity. तो बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप अर्थ से फेंकते हो कुछ ऐसी वेलोसिटी से, इस ऑब्जेक्ट को यहां से फेंकूं अर्थ से ऐसी वेलोसिटी से ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करके कहां पहुंच जाए, इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, तो हम लोग कहते हैं उस चीज को, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये अर्थ की एस्केप से, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से निकल के जब वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो उस चीज को कहलाता है एस्केप वेलोसिटी। और इसका एस्केप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी मस्ट रिमेन कंजर्व, total energy initially must be equals to total energy finally। अब तुम्हें मालूम है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो पार्ट से बन के आती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो सिस्टम की है और जो पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल सिस्टम की है वो किसके बराबर होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के। जब ऑब्जेक्ट को, इस स्मॉल एम को आपने अर्थ के सरफेस से फेंकना चालू किया तो यहां पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी जा रही है निकाल लो भाई। टोटल एनर्जी किस क्या क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस पॉइंट पे और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे मैं किस वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी v से अगर फेंक रहा हूं या vp से फेंक रहा हूं या ve से फेंक रहा हूं, तो इसकी जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर है बच्चों, यानी कि ve, वेलोसिटी ऑफ एस्केप, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम वी का होल स्क्वायर प्लस, अब ये अर्थ के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना, इतना डिस्टेंस कितना है बच्चों? ये तो आ रही है। तो ये जब अर्थ से कुछ हाइट पे रखा हुआ तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी आप लोगों ने निकाला था, कितना था? -g एम अपॉन जो भी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आ रही। तो बच्चों ये टोटल एनर्जी हो गई इनिशियल की, तो मैं यहां सब्सटीट्यूट कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई स्क्वायर। व्हाट इज वी ई? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ projection so that the object escapes the earth's gravitational field and reaches to infinity। ठीक बात है बच्चों। और इसी पॉइंट पर, ये जो इनिशियल पॉइंट जब सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी आपने पढ़ा था, -g एम अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू, और हम कह रहे हैं कि इन्फिनिटी तक पहुंचे। अरे जब इन्फिनिटी तक पहुंचे तो यहां पर जब इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जानी चाहिए? 0। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहुंच गया है तो इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? वो इनफाइनाइट हो जाएगी बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस, अब जब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, किसके किसके बीच का? ऑब्जेक्ट और इनके बीच का डिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो गया ना, तो स्मॉल आर जो है वो इन्फिनिटी के बराबर हो गया। तो -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। So this will eventually come out to be 0. I hope this much is clear to all of you. I am reviewing this part. इसको आप सब लोग नोट करके चलेंगे अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है? चलिए, अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पे ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर -g एम अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू 0, और इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू g एम अपॉन आर ई।
mm कैंसिल हो गया बच्चों, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2g अपॉन आर ई, और वी जो है बच्चों कितना निकल के आ गया, वो निकल के आ गया रूट ऑफ 2g अपॉन आर ई। तो बच्चों ये तो है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की सॉल्व होके आ जाएगी। अच्छा, अगर तुम लोग थोड़ा पीछे जाओ, जब हम लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाली थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको जी नॉट से लिखते थे, जी नॉट इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और बोला था कि भाई जी एम ई के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन आ जाता है, वो क्या है, जी नॉट आर ई स्क्वायर का। तो यहाँ बच्चों देख सकते हो कि तुम इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो किससे, जी नॉट आर ई स्क्वायर से। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो अंडर द रूट ऑफ 2, ये जी एम ई को किससे रिप्लेस कर दिया, 2g0 आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, this re and this re cancels out, therefore escape velocity comes out to be under the root of 2 times of g naught re। तो ये एक्सप्रेशन है escape velocity का बच्चों, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज काइंडली टेक केयर अबाउट द डेरिवेशन पार्ट ऑफ इट। एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आप सबको समझ में आ गया होगा इतनी सारी बातें। सो दिस विल हेल्प यू आउट with the entire topic of gravitational field, gravitational universal gravitation. Kindly make a note of all these things in your copy. Thank you very much.